Welcome learners to Gate Notebook YouTube channel. So today in this session we are going to discuss most expected questions of Python programming for KVS and HPSC PGT Computer Science on a specific topic. तो yes, इस session को start करने से पहले I would like to inform you some very important things. Like first of all, please download our Gate Notebook application, and you can contact us at this number if you need any guidance related to KVS and HPSC PGT Computer Science. And in this way also you should know about our paid courses that we launch for our students so that they can prepare well for exam. So recently we have launched 300 SRPs book for KVS and HPSC PGT Computer Science that you can use this as a best revision book to revise everything for KVS and HPSC PGT Computer Science. So it is available in soft copy and keep it lifetime. So lifetime validity, and the course price is 2000. And what we have covered in this package, so we have covered everything in a very systematic manner so that you can revise it. Like we have covered all the important concepts, important previous year question, important formulae, and important key points from the previous year question. So we have covered theory of computation, compiler design, digital logic design, computer organization architecture. We have covered data communication and computer network. We have covered operating system, system software, system security, software engineering, data mining and data warehousing, database, SQL, big data. Okay. Also we have covered Python. No, sorry, not Python. We have covered data structures and algorithms, right? So this we have covered in our 300 single revision pages book. We have covered these subjects, and you can revise them really well if you use this book. This is available for KVS and HPSC PGT Computer Science. And also we have launched a complete course for HPSC and KVS PGT Computer Science where you can cover basic to advanced concept. This book is for only revision, but if you want complete material then you can enroll to this course जहाँ पे हम recorded lectures complete provide करते हैं basic to advanced concept के साथ, PDF notes 24/7 doubt support, single revision pages. So ये सारे आप download कर सकते हो within the app only till the duration, and the course fee is 2500. Okay, so the validity till exam, like इसकी validity 8th April तक की है, ठीक है. So you can contact on this number and download our Gate Notebook application to enroll to this course. ये KVS और HPSC दोनों की जो preparation कर रहे हैं उसको ये ले सकते हैं. But if you enroll today ना, you will get 2000. You will get this course at 2000. Just contact us on this number. एंड येस, कंप्लीट कोर्स फॉर KVS PGT कंप्यूटर साइंस, अगर सिर्फ KVS की तैयारी कर रहे हैं तो 700 का ये कोर्स आपको पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी टेल एग्जाम है, दैट मीन्स की 23 फेब तक है, और इसमें भी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे. और कंप्लीट कोर्स KVS एंड HPSC का अगर आपको सिर्फ 1 मंथ वैलिडिटी का चाहिए, नॉट टिल द एग्जाम तक का, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम है. बट इट्स बेटर कि 2000 वाले के साथ चलो, क्योंकि उसकी वैलिडिटी फिर भी टिल एग्जाम है. अगर इसमें आप एक्सटेंड करते हो 1 मंथ पे तो उसको 500 लग जाएगा. 300 SRPs बुक हमने UGC नेट कंप्यूटर साइंस के लिए भी लॉन्च किया है, तो वो भी आप इनरोल कर सकते हैं. और HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का या KVS का भी आप कह सकते हो, उसका एक प्रैक्टिस कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इट इज़ अवेलेबल एट 700. ओके, और अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी एग्जाम बहुत नियर है, तो इसमें हमने कंप्लीट कंटेंट कवर किया है पेपर 1 पेपर 2 का. इसमें इतने सारे वीडियो लेक्चर है, PDF नोट्स है, SRP है, डाउट सपोर्ट है, और प्रैक्टिस कोर्स भी इसमें हमने मर्ज कर लिया है. तो इट इज़ अवेलेबल एट 2000. तो इसमें पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स भी है, पेपर 2 का भी कंप्लीट कोर्स है, और इसमें प्रैक्टिस कोर्स भी है पेपर 2 का. और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स चाहिए पेपर 2 का, जो इस कोर्स में ऑलरेडी है, तो अलग से अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इट इज़ अवेलेबल एट 700. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. तो मिलते हैं यहाँ पर अब इन क्वेश्चंस के साथ. So yes students, so in this video we are going to discuss total 45 questions of Python programming. तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने 1 सेकेंड, इसको मैं एडिट कर लेती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड. So we are going to discuss all the Python questions and answers. So let's start it. Okay. So yes, in this video we are going to discuss variable name का, फिर basic data type का, code data type का,
ओके, तो उस सब का हम MCQ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पाइथन क्या केस सेंसिटिव होता है जब उसको आइडेंटिफायर के साथ डील करते हैं? तो यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है? तो अनलिमिटेड लेंथ का होता है। इनमें से क्या स्टेटमेंट इनवैलिड है? तो सारे वैलिड है क्योंकि सबकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हुई है। और इनमें से फिर क्या इनवैलिड वेरिएबल है? तो 1 डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इनवैलिड है। लोकल वेरिएबल नेम का जो बिगनिंग है वो अंडरस्कोर से डिस्करेज क्यों कहा किया जाता है? क्योंकि पाइथन में देखिए प्राइवेट वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट अगर आप किसी वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर लगाते हो तो वो प्राइवेट वेरिएबल माना जाता है जिसे आप क्लास के आउटसाइड नहीं एक्सेस कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? तो eval एक वेरिएबल की तरह आप यूज कर सकते हो, इसलिए वो कीवर्ड नहीं है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में वो नन ऑफ द मेंशन, बिकॉज यहाँ पर ट्रू होता है, फॉल्स होता है और नन होता है जिसको आप यूज कर सकते हो कैपिटलाइज्ड की तरह, और बाकी सारे लोअर केस में होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या ट्रू है वेरिएबल नेम्स का इन पाइथन? तो वेरिएबल अनलिमिटेड लेंथ की होती है। इनमें से इनवैलिड स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसेस दे रखे हैं और वेरिएबल में स्पेसेस नहीं होने चाहिए। इनमें से क्या इनवैलिड वेरिएबल है? तो ऑब्वियसली इन एक कीवर्ड होता है, उसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। अब हम कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑपरेटर है जो पावर x की पावर y को बता रहा है? तो ऑब्वियसली पावर ऑपरेटर होता है ये वाला, जिसको हम रेपिटेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, जैसे कि 3 एंड दिस 4, तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 4 जो 81 होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन है? तो ऑप्शन बी, जो आपको एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, जैसे कि आप 5 एंड दिस फ्लोर डिवीजन का यूज करते हो 2 के साथ, तो ये 2.5 आपको देगा। बल्कि अगर ये दोनों इंटीजर है तो राउंड ऑफ करके 2 मिलता है ना, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, दैट इज 2.5। दोनों इंटीजर है फिर भी इसका रिजल्ट आपको फ्लोट में मिलता है, तो वो सिर्फ फ्लोट डिवीजन के हेल्प से है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन? तो पेमडेस रूल होता है, जैसे कि बॉडमास रूल होता है, जैसे कि आप प्रेसिडेंस पता कर सकते हो। तो पैरेंथेसिस का सबसे ज्यादा होता है, फिर एक्सपोनेंशियल का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिमिलर होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिमिलर होता है, बट इसके बाद ही एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन? तो 22 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर क्या निकल करके आएगा? ऑब्वियसली 1, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अगर कोई ऑपरेटर है जिसकी सेम प्रेसिडेंस है तो उसको हम इवेलुएट करते हैं लेफ्ट टू राइट मैनर में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? सो 3 into 1, और इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो पहले आप इसको कंप्यूट करोगे तो ये 1 की पावर 3 है, दैट इज 1, फिर 1 से 3 को इंटू करोगे तो 3 आंसर निकल करके आएगा। इनमें से किसका सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एक्सप्रेशन इनिट x जो है वो इम्प्लाई करती है कि वेरिएबल x जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो बिल्कुल सही, ट्रू है इसका आंसर। इनमें से कौन इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है एक्सप्रेशन में? तो ऑब्वियसली पेमडेस रूल के हिसाब से पैरेंथेसिस का, ऑप्शन डी। अब कुछ कोर डेटा टाइप के हम पाइथन MCQ कर लेते हैं। तो इनमें से कौन है जो कोर डेटा टाइप नहीं है? तो वो क्लास है। ये क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। Given a function that does not return any value, what value is thrown by default when executed in a shell? अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो जो वैल्यू थ्रो करेगा वो नन होगा फंक्शन। इनमें से क्या आउटपुट होगा फॉलोइंग पाइथन कोड का? तो ये स्ट्रिंग हेलो है, और ये :2 का मतलब कि जो फर्स्ट 2 बाइट्स को ये खाली प्रिंट करेगा, दैट इज HE। इनमें से कौन है जो रन करेगा विदाउट एरर्स? तो ऑप्शन ए, राउंड ऑफ 45.8, क्योंकि राउंड के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं है, और यहाँ पे कोमा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये और ये गलत है। What is the return type of function ID? तो it is always integer. In Python, we do not specify types. It is directly interpreted by the compiler. So consider the following operation to be performed. ये मेक श्योर करने की x के पास इंटीजर वैल्यू रहे तो क्या हो सकता है? तो x के पास इंटीजर वैल्यू रहेगा, इसके हेल्प से भी, इसके हेल्प से भी, और इसके हेल्प से भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका राइट आंसर है। तो ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन है, ये टाइप कास्ट ऑपरेटर है जो इंटीजर में वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, और ये रिमाइंडर हमेशा इंटीजर में आता है। व्हाट एरर अकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड? तो ऑब्वियसली नेम एरर, बिकॉज मैंगो को आपने डिफाइन नहीं किया है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट?
तो ऑब्वियसली इंडेंटेशन एरर, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस से ठीक से इंडेंट नहीं किया है कोड को। व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो, तो डेफिनेटली इट इज अ लिस्ट ऑफ टाइप, क्योंकि इसके पास कैसे भी वैल्यू आ सकते हैं और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। In order to store values in terms of key and value, we use which type of core data type? Obviously dictionary, क्योंकि dictionary key और value में मैपिंग करके values provide करता है। इनमें से क्या आपको syntax error दे सकता है, तो this one, because it should be in double quotes. The following is displayed by a print function call. Select all the function calls that result in this output. तो कौन से function calls से ये output आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप कोई न्यू लाइन लगा रहे हो तो आपको नई लाइन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम लाइन में भी तीनों नाम को लिखते हो एंड सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, देन यू कैन गेट द आउटपुट। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत इसलिए क्योंकि आपने न्यू लाइन का यूज नहीं किया जो न्यू लाइन को ऐड करता है, और इसलिए ये भी गलत है क्योंकि ये बहुत सारे स्पेसेस लेकर के आ रहा है, तो हमें लाइन में स्पेसेस नहीं चाहिए। What is the average value of the following Python code snippet? तो obviously 80 plus 90, 170 by 2, that is 85.0. Select all the options that print hello, how are you? तो 3 hyphens भी होने चाहिए जो इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास 1 2 3 है और इसके पास 1 2 ही है, तो इसलिए गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the return value of trunk? तो ट्रंक की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, तो ट्रंक की रिटर्न वैल्यू इंट होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3? तो ऑब्वियसली 0.1 0.2 इन सब का बाइनरी फॉर्म तो होता नहीं है, बाइनरी वर्जन सिर्फ 1 2 3 नंबर का होता है, पॉइंट वालों का नहीं, तो इसलिए आप ऑप्शन 20 को लगाओगे। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्योंकि एल यहाँ पर लॉन्ग को बताता है, लॉन्ग डेटा टाइप को। इनमें से क्या टाइप होता है इन्फ का, तो ऑलवेज फ्लोट। व्हाट डज दिस इवेलुएट्स टू, इसका मतलब होता है -x+1, तो इसका मतलब होगा -4+1 दैट इज -5। व्हाट डज दिस इवेलुएट्स टू, देन जब ये इवेलुएट कर रहा है -5+1 दैट इज -6 को, तो ये कॉम्पोनेंट आपका -6 हो गया, और -6 पे भी आप सेम यही रूल अपनाते हो तो इट विल बिकम -5 और +5, तो ये +5 होगा। फिर +5 पे आप सेम वही काम करोगे, फिर -6 आएगा, -6 पे वही करोगे तो +5, फिर +5 पे -6, फिर -6 के बाद +5, ऑल्टरनेट है तो +5 इज द रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है और ऑक्टल का जो नंबर है वो 0 to 7 ही हो सकता है, यहाँ पे 9 इज नॉट एप्लीकेबल, और 0x मतलब हेक्साडेसिमल है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ CMP31, तो 3 और 1, अगर x ग्रेटर देन y होता है तो वो 1 रिटर्न करता है, अगर x 1 के इक्वल होता है तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, और अगर x y से छोटा होता है तो वो -1 रिटर्न करता है, पर यहाँ पे 3 1 से ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली 1 रिटर्न करेगा। इनमें से क्या इनकरेक्ट है, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बिकॉज आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो फ्लोट पे, इसलिए इनकरेक्ट है। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये राउंड फंक्शन जो टोटली डिपेंड करता है पाइथन के वर्जन पे, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 4, तो ऑब्वियसली इसका मतलब होता है बाइनरी एक्सॉर। ठीक है, ये बाइनरी एक्सॉर है बेसिकली, नॉट द पावर ऑपरेटर, जिसका मतलब होता है कि 3 का बाइनरी लिखो और 4 का बाइनरी लिखो और इसका एक्सॉर कर दो। तो एक्सॉर जो होती है वो डिफरेंट इनपुट के लिए 1 होती है, डिफरेंट इनपुट के लिए 1 होती है, डिफरेंट इनपुट के लिए 1 होती है, विच इज द बाइनरी ऑफ 7, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टोटल 45 क्वेश्चंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।